Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. In the previous classes, we have covered our very two important chapters. The first one of center-state relations and the second one of the interstate relations. Now we will jump to completely new chapter, that is emergencies. In the previous classes, I have told you in a superficial way about the three emergencies. The first one is 352, national emergency, 356, the president's rule or informally states emergency, and the 360 financial emergency. So in today's class, we will be discussing in an elaborate way the first emergency, that is national emergency. थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले ले पहले, है ना. ओवरव्यू में इतना ही है. तीन मैंने आपको एमरजेंसीज बता दी हैं. 352, 356 एंड 360. 352 इज ऑल्सो नोन एज proclamation of the emergency. So president proclaims this emergency, which is called national emergency under article 352. There are three grounds of the proclamation of the emergency. That is, अगर इसको मोटा मोटा बाइफरकेट करें तो वन साइड इज एक्सटर्नल इमरजेंसी विच हैज़ टू सब पार्ट्स एंड अदर साइड इज एक्सटर्नल इमरजेंसी. पहला इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है. लिख ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा. आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. दिस इज द ऑफिशियल टर्म. कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट. If the president is satisfied that there is a imminent danger to the security of India, so before the actual dangers arrives on the shores of India, the president can proclaim this national emergency. So जब आपके पास थ्रेट आ चुका है, जब इंडिया पे वॉर हो चुका है, तब प्रोक्लेम कर सकता है, और इवन बिफोर द इमिनेंट डेंजर. डेट इज प्रेसिडेंट. ऑन ग्राउंड्स हैं. क्या क्या ग्राउंड्स हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, so these constitute informally our external grounds, and the last one is the armed rebellion. So prior to 44th Amendment Act of 1978, we have something called as internal disturbance, and the national emergency of 1975 proclaimed by our then Prime Minister, informally बोल रहा हूँ, then Prime Minister इंदिरा गांधी. So वो कौन से ग्राउंड पे थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस. बट इट इज़ अ वेरी वेग टर्म. If only 4 people in the 130 crore जनसंख्या of India, only 4 people are carrying arms and roaming on the streets of Delhi, it is also known as internal disturbance. If these 4 goons are taking hockey, balla and roaming around the streets of Delhi और अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, तो उसको भी हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं. कोई भी कहीं भी धरना दे रहा है, चाहे उसमें एक ही लोग हो, एक पोस्टर लगा के बैठा है, दरी लगा के बैठा है, कहाँ? जंतर मंतर पे, उसको भी हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं. सो ड्यू टू द वेगनेस ऑफ दिस टर्म, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन in 44th Amendment Act of 1978. In 1978, one more provision has been added. क्या भाई? Cabinet written recommendation is required before the actual proclamation of the national emergency. So thus there are two inferences here. The first one मैंने आपको बता दिया, under 44th Amendment Act 1978 this provision has been included in our constitution. On the written recommendation of the cabinet,
the president can proclaim the national emergency. The second thing is cabinet a constitutional body? Indeed, cabinet is a constitutional body as it has been inserted in our constitution after amendment of 44th. Understood? अवधि क्या होगी इस इमरजेंसी की? टाइम पीरियड क्या है? देखिए, इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 6 months, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड n नंबर ऑफ टाइम्स. बस दिक्कत क्या है? यस, आफ्टर एवरी 6 months पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. सो यहीं से हमारे पास एक कोटा हो जाता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल. You can hear lot of background sounds. There's a high net worth individual in my area, so उसकी शादी है घर में तो आएगी आवाज़. पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेस. कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है? यस, विद इन 1 month ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. बट व्हाट अबाउट अ स्पेशल सिचुएशन? अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग मैंने पढ़ाया आपको, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. सो दिस इज द स्पेशल मेजॉरिटी. देयर इज अ स्पेशल कंडीशन हेयर और स्पेशल सिचुएशन हेयर. इफ दिस सिचुएशन अराइजेज दैट द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड द इमरजेंसी एट पर्टिकुलरली दैट डेट the Lok Sabha has been dissolved. So in the constitution it is written that if the Lok Sabha has been dissolved at the time of the proclamation of emergency, so in the meantime Rajya Sabha should pass it within 1 month. And whenever the Lok Sabha will be reconstituted, then the Lok Sabha has to pass this bill in 30 days or approve this इमरजेंसी इन 30 days. अब 1 month भी लिख सकते थे, पर नहीं, 30 days लिखूंगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 30 days. ये सब ना, ये याद मत करना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं. ऑल द इमरजेंसीज शुड बी अप्रूव्ड विद इन 2 months ऑफ द प्रोक्लेमेशन. बट हमने यहाँ क्या लिखा है? 1 month. हाँ जी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में बोल दिया था कि इसको 1 month में ही अप्रूव करो. तो वैसे सारी इमरजेंसी 2 months ही थी. 352 2 month, 356 प्रेसिडेंट रूल 2 month, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 2 months. बट ये नेशनल इमरजेंसी है. जब हमने देखा 1975 की जो इमरजेंसी थी, जिसको हम एक ब्लैक डे भी बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि आप ऐसे कैसे बिना भी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई और आपने इसी के ज़रिए एक पूरा देश को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. तो तभी से 44th अमेंडमेंट आया. एंड एवरी गुड प्रोविजन अबाउट आवर इमरजेंसीज is written under 44th Amendment Act. Understood? और फिर उसी से ये 1 month की टाइम पीरियड कर दिया, 2 month से 1 month कर दिया. तो सारी इमरजेंसी 2 months है. बट दिक्कत क्या आई? पूरी स्टोरी बता दी मैंने. अब आपको हमेशा याद रहेगा नहीं, बस नेशनल इमरजेंसी 1 month कर दी. वाई? बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी ऑफ 1975. जितने भी बेकार प्रोविजन है ज़्यादातर इमरजेंसी के, वो किस में है? यस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आई थी? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज. सो इसमें वो सारे बेकार प्रोविजंस हैं. उनमें से एक प्रोविजन मैं बता देता हूँ. दिस नेशनल इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. सो ये था नेशनल इमरजेंसी में. एक और चीज़ है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद रिपरकशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. तो उसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पे रिपरकशंस पढ़ेंगे. तो जैसे हमारे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है, लेजिस्लेटिव हेड था, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था. तो इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस में सेंटर कैन गिव सम ऑर्डर्स. अगर आपको याद आ रही है प्रीवियस क्लासेस, सेंटर कैन गिव सम ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट को मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज ऑर्डर्स इट विल डायरेक्टली लीड टू 365 विच इवेंचुअली लीड टू 356 प्रेसिडेंट रूल. तो ये आपको साइकिल पता होनी चाहिए. सो ये जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं,
अगर मान लीजिए ये हमारी टेरिटरी इंडिया की, इन दिस पार्ट ओनली द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन अप्लाइड, अभी हमने पढ़ा 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया, नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट in the whole territory of India or part of it. If there is a part of territory of India and the national emergency has been declared here, so यहाँ के legislative, executive ये सारे सेंटर स्टेट रिलेशंस अफेक्ट होंगे. बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज़ डाल दी कि yes, this particular thing, not the emergency, but this, the change in the legislative and executive head or extension of its jurisdiction can be extended to whole of India. Understood? जब ये स्टेटमेंट में की फॉर्म में आएगा तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा. आप यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए बस. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ ऑल ड्रैकोनियन लॉज हैव बीन पास्ड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड ऑल द करेक्टिव provisions or curative provisions has been applied in 44th amendment act, like cabinet recommendation is required. armed rebellion change कर दिया. एक और क्या किया, 20 and 21 आर्टिकल विल रिमेन अलाइव एवरी टाइम. तो क्या और सब मर जाएंगे यार फंडामेंटल राइट्स? अभी हम देखते हैं क्या हुआ उनके साथ. अच्छा, इमरजेंसीज कौन से पार्ट में है ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया. पार्ट 18 352 से 360 तक है. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी. There are two ways of revocation. The first one being by the president's proclamations. There are number of proclamations that can be issued by the president during the time of national emergencies. पहली तो प्रोक्लेमेशन निकालेगा कि भाई इमरजेंसी लग गई है. उसके बाद भी नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस कैन बी मेड, भाई ये रूल चेंज करो, ये रूल ऐसे अप्लाई होगा. अभी हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस में थोड़ी सी. बाई अ मेयर प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेशनल इमरजेंसी वुड सीज टू एग्जिस्ट. बट क्या हो, प्रेसिडेंट ही मिला हो, ही इज़ करप्ट, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ अ मॉरल ट्रप्टिट्यूड. अच्छा वर्ड है मॉरल ट्रप्टिट्यूड, देखना जाके. देन लोकसभा हैज़ गिवन सम स्पेशल पावर्स टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी. ये सारे हमने लेसन्स कहाँ लर्न किए, 1975 की इमरजेंसी में. 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स, 3 तरह की सीट्स होती हैं टोटल, जितने भी पुर्जे रखे हैं सीट्स के सब. इफेक्टिव सीट्स के पुर्जे तो रखे हुए हैं, उस पर हमारे एमपी या एमएलए कितने बैठे हुए हैं. अगर इस सीट पे वैकेंट है, ये सीट कोई एमपी या एमएलए इलेक्ट होके नहीं आया है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, यहाँ 2 है. इधर कितनी है, 5. तो ये टोटल 5 हो गई, जितनी सीट है, लकड़ी की सीट रखी है. इफेक्टिव कितनी है, जितनों पे एमपी बैठे हैं. ये एब्सेंट नहीं है, ये वेकेंट है, दोनों में अंतर है. टोटल में भी यहाँ सारे बैठे हैं और ये क्या करने गया है, समझ आ गया. तो ये वेकेंट नहीं है, ही इज़ एब्सेंट. अगर वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ये वेकेंट नहीं है, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम हिज सीट. अंडरस्टूड. इफेक्टिव है द सीट इटसेल्फ इज वेकेंट, द इलेक्शन इज पेंडिंग, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव. और प्रेजेंट एंड वोटिंग में आपको पता है ये सारी सीट्स हैं, जो भी फ्रेश होने गया है उसको हटा दो. जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस एंड इफ दे आर वोटिंग देन द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स या टोटल एमपीज देंगे एक नोटिस, किसको, इफ द लोकसभा इज रनिंग टू द स्पीकर. इफ लोकसभा इज
डिसॉल्व, अगर डिसॉल्व हो चुकी तो, या सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को देंगे। Within 14 days, a special sitting of Lok Sabha will be convened, and if this resolution has been passed by simple majority, ध्यान से देखिए, ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा की बात ही नहीं आ रही, सो द emergency stands revoked. The significant point in this particular chronology is whenever you will proclaim the emergency, the national emergency, it is a very arduous process. You would require special majority. Within 1 month, you have to sanction this national emergency. From both the houses of parliament, special majority is required. And that too for only 6 months. The renewal process again starts after 6 months till n number of times. But to revoke, even a president's proclamation is necessary or needed. No interference of parliament is needed if president itself is proclaiming that now the national emergency ceased to exist. And on top of that, Lok Sabha has also given special powers. 1/10 of the total seats give their opinion that we want to revoke the emergency to the speaker if the Lok Sabha is not in session, to the president. Within 14 days, a special sitting of Lok Sabha will be called. And if in this special sitting, by a simple majority, if this bill has been passed by the Lok Sabha, so the emergency stands revoked. समझ गए बात? ये बात थी भाई रिवोकेशन की। मैंने आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं बताई, कब कब लागू हुई थी। 1962 साइनो इंडियन वॉर, 1971 द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एंड 1975 द ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो आप बोलोगे 1965 में भी इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो दिस इमरजेंसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 1968, तो वो इसी में क्लब हो गई। In 1971, two types of national emergencies are there. We have two grounds, external grounds as well as internal grounds. So 1971 for the external ground, 1975 internal ground, that is internal disturbance. And 44th Amendment Act changed to armed rebellion. The effect or repercussions on center state relation. On life of Lok Sabha and legislative assemblies, on our fundamental rights. Center state relations, again we have three heads. In the previous class we have talked about these three heads. Executive में क्या था? On certain grounds, on certain subjects like maintenance of traffic, maintenance of communication, maintenance of armed establishment, providing mother tongue education to minorities, such kind of things center can give direction to the states. States has to comply with these directions, otherwise 365 leading to 356. So in executive part, earlier there was only specific grounds or subjects on which the center can give orders to state. But now after emergency, the center can give any state any executive order. So this any word is very important here. कोई भी चीज़ पे center can order states. यहाँ से we will have one other inference. In the proclamation of national emergency, state governments are neither suspended nor state assemblies are dissolved. Only there is a modification of center state relations. हो गया पहला हेड.
लेजिस्लेटिव में द सेंटर विल एक्वायर कॉन्करेंट पावर on all the state subject, but mind you, if today the national emergency ceased to exist, exit, so within 6 months all these legislations done by the center will cease to exist. अगर आज नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होती है तो विद इन 6 मंथ्स ये रूल्स भी सारे ख़त्म हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज दिस वॉज अ टेम्परेरी कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर ओवर स्टेट लिस्ट. फाइनेंशियल में आई हैव टोल्ड यू प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. मॉडिफाई मतलब it can reduce as well as it can cancel. So this was financial head. Life of Lok Sabha and legislative assemblies. First prelim fact, only parliament has power to extend the life of lower legislature. कैसे? By 1 year at a time for n number of years. But again, if the national emergency ceased to exist today, then within 6 months these will get dissolved. Very important point, only parliament has the power. On fundamental rights we have 2 articles, article 358 and article 359, very important articles. At the time of proclamation of national emergency, article 19 will automatically get suspended. What are the subtypes of article 19? Right to free speech and expression. थोड़ा असेंबल हो जाओ, असेंबल होके बोर हो गए, एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन करके अब क्या करेंगे, थोड़ा सा टहलने निकल जाते हैं, तो घूम के आ गए तो रेजिडेंस बना लिया, तो वोकेशन कर ली, रेजिडेंस तो हट गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से, है ना, अंडर आर्टिकल 300A डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को, ये सब याद रखना. सो आर्टिकल 19 विल गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड when the national emergency has been proclaimed on external grounds, only external grounds, not on armed rebellion. The article 19 at its full length will get vanished. अब हम पढ़ेंगे 359. देखिए थोड़ी सी जो सब्जेक्ट है ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट है ये, समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 20 and 21 विल रिमेन. ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब सारी तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगी. अब एक बात ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट मैंने बताया था विल डू द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस, बहुत सारी प्रोक्लेमेशन वो ऑर्डर करेगा. In one of those proclamation, it will be written that as the national emergency has been implemented throughout the territory of India or a part of the territory of India, it means all the rights that have been enshrined in the president's proclamation, their application will get suspended. It means rights are there with the citizens, but their application has no effect. It means basically article 32 is not there with you. During the national emergency, if there is a violation of your fundamental rights, you can't approach Supreme Court, you can't approach High Court. Even if when the national emergency ceased to exist, even then after the national emergency you can't approach the courts regarding the violation of your fundamental rights when there was a presence of emergency. Understood? So all the executive acts as well as legislative acts that has been done by the center or parliament during the national emergency
You can't go to court against them during the emergency and even after the cessation of national emergency, provided these executive acts and legislative acts are there or are related with the provisions of emergencies. ऐसा नहीं है यहाँ इमरजेंसी लगी, आपका यहाँ घर था, छोटी सी झोपड़ी थी और सेंटर ने लॉ बना दिया भाई ये झोपड़ी जो है ये मैं ले रहा हूँ अपने कब्जे में। इसका क्या फ़ायदा है पूरे इमरजेंसी से रिलेशन में? कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऐसे लॉज कुछ भी नहीं, आर्बिट्रेरी लॉज नहीं लगा सकती। ओनली दोज लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स विच आर रिलेशन विद द नेशनल इमरजेंसी, दोज कांट बी चैलेंज्ड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी और इवन आफ्टर दैट। अंडरस्टूड? सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अंडर आर्टिकल 359 द राइट्स विच हैव बीन written in president's proclamation, their enforcement will get suspended. Practically you have rights with you but their application part is suspended. Understood? So these are the differences between 358 and 359. 358 में all the parts of article 19 will get automatically suspended. 359 में only the rights that has been written in the president's order those will be suspended. और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज ऑल्सो रिटन इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी। विद इट्स एंटायरिटी आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड, नॉट एंटायरिटी। समझ में आ गया? इन द होल ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 इज नॉट देयर। In the territory which has been enshrined in the president's order, everything will be returned in a president order. तो वही चीज़ अप्लाई होगी। आपको समझ आ रहा है? और ऊपर से 20 एंड 21 विल रिमेन ऑल द टाइम। कब आया ये? 44th अमेंडमेंट एक्ट में आ गया। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेशनल इमरजेंसी। तो आज यहीं क्लास रहने देते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। क्या हमने कंप्लीट कर दिया सारा? और फंडामेंटल राइट्स हो गया, हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो इफ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।